Good evening, friends, all of you present here. Once again, very good evening to all of you. And welcome to the class today. We are going to have this pension rules 2021. Friends, pension is such a part that is very essential and we need to know everything in quite detail. What is OPS? What is qualifying services? Types of pension, family pension, gratuity, nominations, and then case study question will also be there. We will also discuss the multiple choice questions and descriptive questions. Before we begin the class, we welcome from the core of our heart Sri Mangilal Karwaji, Kendriya Vidyalaya number 1, Surat, Gujarat. Welcome Mangilal sir to the class today. And all the friends are requested to go through and read. We are giving you 1 minute time to read this case based question. There is a case study. Please read the question carefully. Then sir will begin with his class. Rather, I will read Thank you, it sir. quickly for you. Ji sir. Thank Ji you. sir, Mangilal sir. Yes, sir. Sir, over to you, sir. You can begin. यस सर. सो आप एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार खाली रीड कर लीजिए, 1 मिनट दे दीजिए इनको पढ़ने के लिए पूरा केस, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. हाँ, थोड़ा क्विकली रीड कीजिए, हमारे पास क्योंकि समय कम ही रहता है ताकि किसी का वेस्ट नहीं हो. चलिए आप सभी जैसे के लिए मैं पढ़ देता हूँ. जी मैं पढ़ देता हूँ सर. एट द जी टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट श्री एस सुंदर हैड suppressed the fact he was married to श्रीमती मीरा and had a daughter स्नेहा. सुंदर कुमार जी ने यह बात छिपा ली थी कि उन्होंने श्रीमती मीरा से शादी की थी और उनकी एक बिटिया स्नेहा है. He had subsequently divorced श्रीमती मीरा in the year 1985 in the presence of local panchayat committee members as per the custom of his community. Okay. Subsequent to the divorce, he married one श्रीमती रीना in the year 1985. जिस साल उन्होंने डिवोर्स दिया उसी साल उन्होंने शादी कर ली 1985 itself. He had two sons, namely Sri S. Karan and Sri S. Kumar from his second marriage. याद रखिए, पहली शादी मीरा से और बेटी स्नेहा. दूसरी शादी किसी का माइक चालू है दोस्तों. दूसरी शादी रीना से 1985 में ही. दो बेटे थे, एस करण और एस कुमार. Earlier, the deceased official had made his mother and brother as nominees. अब यहाँ पे वो ऑफिसर डिसीज्ड है, मतलब एस सुंदर कुमार डिसीज्ड हैं. उन्होंने पहले अपने भाई को और मम्मी को नॉमिनी बनाया था. दिस नॉमिनेशन वाज सब्सिक्वेंटली सप्रेस्ड बाय अदर नॉमिनेशन डेटेड 23/2/1996. 23/2/1996 को उन्होंने नॉमिनेशन चेंज कर दिया, जो उन दोनों को नहीं बताया, which was favor of Srimati Reena, the second wife. The nomination for DCRG is also in favor of Srimati Reena. In family particulars also, the official had furnished the names of Srimati Reena as wife and Sri Karan and Kumar as sons. After the death of Sri S. Sundar, along with pension paper, Srimati Reena submitted a representation dated 22nd of March 2008, wherein she had stated about late Sri Sundar's first marriage and subsequent divorce. उसके बारे में उन्होंने बताया. श्रीमती रीना had pleaded that she only was eligible for grant of family pension and other pensionary benefit is in respect of the deceased officer late Sri S. Sundar, subsequently first wife, and her daughter also staked claim for family pension and other pensionary benefit. दूसरी पत्नी और पहली पत्नी दोनों ने क्लेम किया. In June 2010, a compromise was arrived between Meera and daughter Sneha, married daughter of deceased officer. अब वो married हो चुकी है. Srimati Reena and Sri S. Karan, they agreed that Srimati Reena will claim the pensionary benefit. However, administrative authority decided that mutual agreement is not as per extant rule and family pension claim would be acted upon only if suitable order passed by a competent court of law for their succession to late S. Sundar. उसके आगे क्या हुआ? Subsequent to this,
Reena and S. Karan filed application before principal subordinate judge of Madurai for issue of succession certificate. As per the succession certificate issued by the civil court, both Miss Reena and Miss Meera were to share the family pension equally, that is 50% share to each of the family pension. Miss S. Reena, Sri S. Karan or Miss Reena and Miss Sneha were entitled to receive all other benefits due to less S. Sundars equally, that is 1/4 of each. थैंक तो यू सर। दोस्तों ये केस है जी। हाँ, देखो सर ने एक क्वेश्चन मेरे लिए पढ़ लिया, थैंक यू। अब इसमें आप देखो कितने सारे जो है कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। मेरा सर ये किसी फिल्म की स्टोरी जैसा था सर। ये फिल्म की स्टोरी है और इसका कंक्लूजन जो है मैं दूंगा, क्लाइमेक्स है लास्ट में लिखा हुआ मेरे पास। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये फैमिली पेंशन किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमें सारे फैक्ट्स पता हो पेंशन के बारे में, ठीक है सर। तो ये पेंशन रूल बेसिकली 1972 में आए थे। इट वाज इनिशियली एनफोर्स्ड इन 1972 1st June. The date is important. Sometimes it is asked in the question. My first question is 1st June 1972. Then it is modified again in 2021 and notification date is 20th December 2021 और इसमें 87 रूल है, अप्रोक्सीमेट 100 पेजेज हैं, जिसमें से हमारे काम के लगभग 60 पेज हैं। उस 60 पेज को मैंने जितना हो सके समराइज किया है, बट आई कुड नॉट समराइज इट इन वन क्लासरूम। सो my question is that providing why we get the pension, it is mentioned here providing financial independence, security and stability during retirement by ensuring regular income stream when active employment ends. जब आदमी का एम्प्लॉयमेंट सब खत्म हो जाता है तो उसको एक फाइनेंशियल सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, इसके लिए पेंशन दी जाती है। और हमारे में से बहुत सारे होंगे जिनको ये सिक्योरिटी शायद उतनी नहीं मिले जितनी ओपीएस में मिलती थी, वो वक्त बताएगा। दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग एल्डरली पुअर्टी, मेंटेनिंग लिविंग स्टैंडर्ड। एक आदमी पहले अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड से रह रहा था, वही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए, इसलिए पेंशन दी जा रही है। आज आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, फ्यूचर में आपकी इनकम 25,000 हो जाएगी, तो आप वही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, सभी को पता है। और एक चीज जो है मैंने कैपिटल में लिख रखी है, आप देखिए लाइन नंबर, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर गुड कंडक्ट। मेरे पास 2025 का एक केस स्टडी और है, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। 22/5/2025 को ये कुछ करेक्शन आया है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। और बाकी सबको पता है कि ये पेंशन स्कीम जिसने 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किया उसी को मिलती है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो ये गुड कंडक्ट वर्ड याद रखिएगा, आगे अपने पास आएगा। एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द लॉ, तो ये भी एक तरह का लॉ ही है, ठीक है सर। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। किसी को यहां तक डाउट हो तो पूछ लीजिए। वाई पेंशन इज गिवन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट इज, अब यहां पे बहुत सारी बातें आती है कि पेंशन का कंसेप्ट क्या है। एक तो आपको पता है एप्लीकेबल किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी पेंशन। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड बिफोर 1/1/2004, इनको ओपीएस या जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं, सारे सिविलियन एम्प्लॉय को मिलेगी। इवन सिविलियन इन द डिफेंस सर्विस, उनको भी मिलेगी। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन क्लास, आई वांट दैट इट शुड बी इंटरेक्टिव। सिविलियन इन डिफेंस कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या होते हैं? सर वो नॉन यूनिफॉर्म्ड होते हैं, जैसे एमईएस के लोग जो होते हैं वो दे आर अ पार्ट ऑफ डिफेंस, बट वो सिविलियन कहे जाते हैं। उनका पैसा कहां से मिलता है? सर ये नहीं पता। उनका पैसा डिफेंस एस्टिमेट से मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन होते वो डिफेंस के एम्प्लॉय, लेकिन सिविल सेक्टर में काम। बाकी फर्स्ट पार्ट वाज योर फर्स्ट आंसर वाज करेक्ट, बट द मनी इज पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट। नेक्स्ट इज देखिए,
ये सारे जो जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जिनको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है 1972 वाले या 2021 वाले, वो साइड में मैंने लिख रखे हैं। रेलवे, कैजुअल और डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, पेंशन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी। कोई बता सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के एग्जाम में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स आर देयर? सर 3 होते हैं सर। 2 types. Sir, 2 types. हाँ, मैं भी Consolidated तो वही and करके आया था। contingency. मैं भी तो वही Consolidated करके आया and था। contingency. आई वाज Three रॉन्ग। types. थ्री। सर GFR के अकॉर्डिंग 3 होते हैं। यस, 3 GFR के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, करेक्ट। वन इज कंटीजेंसी कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसीज और पब्लिक अकाउंट। पब्लिक Public अकाउंट। accounts and consolidated. यस, तो यहाँ पे कंटीजेंसी से जिसको पेड होता है उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, पर्सन एंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, CPF जिस पे एप्लीकेबल है उसके लिए भी ये लागू नहीं है। मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन लोकली रिक्रूटेड इन डिप्लोमेटिक कंसुलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन में हमारा कोई डेलीगेशन गया हुआ है और वहां पे कोई लोकली रिक्रूटेड है तो उस पे ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। एक बार रीड कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, है ना। जो I will read it for I will read it for you, friend. Yes, anyone? किसी को कोई डाउट है? मैं जी। ये कह रहा था मंगीलाल सर, मतलब Yes, इट्स sir. माय सजेशन, आप सर पूरा पढ़ दें, या तो आप Okay, पढ़ दें okay. या सर पढ़ दें। राइट, तो मैं पढ़ उसमें देता हूँ, कोई दिक्कत हाँ, राइट। पर्सन लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक कंसुलर और अदर देन एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। जी पार्ट कहता है पर्सन एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, एंड H कहता है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वालों पे भी नहीं है, अदरवाइज लिखा है, इसमें कुछ कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वालों पे एप्लीकेबल होता है। और H कहता है पर्सन हुज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर रेगुलेटेड और अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के ऊपर कुछ कंडीशन में होता है, वो हम आगे देखेंगे। और जिनके ऊपर सर्विस कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लागू होती है वहां पे ये डिनाइड है, वहां पे डिनाइड है। बाकी आप एक बात याद रखिए, सिविलियन के अलावा सभी जगह जो सिविल एम्प्लॉय है उसको पेंशन मिलती है, दैट्स ऑल। याद रखने के लिए अगर बात रखनी है तो सिविलियन आर इंक्लूडेड, अदर ऑल आर एक्सक्लूडेड। दूसरा कौन है, और सिविलियन भी कौन, जो 1/1/2004 से पहले अपॉइंट हुआ है और जिसके ऊपर NPS एप्लीकेबल होता है उसको भी लागू नहीं है ये स्कीम। नीचे लिखा है, देखिए इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड सर कीजिए, नेक्स्ट। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज पुट ऑन इंडक्शन। अब यहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि सर कोई आदमी इंडक्शन पे गया और फिर उसने ज्वाइन किया, ज्वाइन उसने कब किया, 31 दिसंबर के बाद किया, तो क्या उसको मिलेगा? लेकिन उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग पहले हुई थी। तो यहां पे लिखा है ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज पुट ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 31st day of December 2003 followed by appointment on regular basis after 31st day of December 2003। तो जिस आदमी ने इंडक्शन ट्रेनिंग कर लिया, अब ये मेरे कई सारे यहाँ पे PGT CS साथी होंगे जिन्होंने 5/9/2007 को ज्वाइन किया था, राइट। कई स्कूलों में उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10/9/2007 कर दी गई है। तो मेरे पास कई बार फोन आता है, सो आई टेल वेदर यू गॉट द पे ऑन 5/9/2007 और नॉट, आपने पेमेंट लिया कि नहीं लिया, देन इट इज योर ज्वाइनिंग डेट, दैट्स ऑल। सेकंड पॉइंट देखिए, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31st दिसंबर, जिसका अपॉइंटमेंट 31st दिसंबर 2000 पहले से हुआ है, उसको भी OPS लागू होगा। इवन ऑफ डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन। अब ये ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन आगे आएगा क्या होता है, अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31st, ये सारे केसेस इंक्लूडेड हैं। जिसने भी, एक बात याद रखनी है, जिसने भी 31 दिसंबर 2003 और उससे पहले ज्वाइन किया है उन सबको पेंशन लागू होगी।
नेक्स्ट प्लीज सर। तो सर पहले केस में भी पेंशन मिलने वाला है ना, जिसने इंडक्शन? यस सर, मिलने वाला है। अगर उसका अपॉइंटमेंट, मान लो उसने, लेटेस्ट से मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस कर देता हूँ, लेटेस्ट से उसने जो है 28 दिसंबर को इंडक्शन कोर्स किया 3 दिन का, 28, 29, 30, 31, 4 दिन मान लेते हैं, राइट, और उसने 1 तारीख को स्कूल में जाके ज्वाइन किया, तो उसको भी पेंशन मिलेगी। ओके सर, एम आई क्लियर? यू आर वेरी क्लियर सर। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा Yes, sir. दोस्तों, जैसे अब नए रिक्रूटी जो आए हैं वो पहले ज्वाइन करते हैं, उनके ज्वाइनिंग के बहुत समय बाद में इंडक्शन होता है। पहले ऐसा होता था कि 3 दिन 4 दिन 7 दिन का पहले इंडक्शन कोर्स करते थे वो, उसके बाद में उन्हें ज्वाइनिंग दी जाती थी। लेकिन चूंकि इंडक्शन का उनको लेटर इशू हो चुका है, इट मीन्स दे आर अपॉइंटेड दो दे हैव नॉट ज्वाइन, इसीलिए दे आर एलिजिबल फॉर पेंशन। मंगीलाल सर, एम आई करेक्ट? करेक्ट, यस सर। मैं यही उसका सर रीजन एग्जांपल था, हूँ। क्योंकि नॉलेज में यही था कि पहले ज्वाइनिंग लेटर रहता है या ज्वाइन करते हैं उसके बाद इंडक्शन होता है, बट जैसे सर आपने Yes, sir. बताया पहले ऐसा होता था, तो दैट इज बिल्कुल, मैं खुद एग्जांपल हूँ। पीजीटी सीएस 2007 वाले सारे इसी का एग्जांपल है। उनका इंडक्शन हुआ, फिर ज्वाइन किया। मांगीलाल जी, मेरा एक तो- क्वेश्चन है सर। यस सर। जी सर, क्या अगर कोई रनिंग में हो इंडक्शन कोर्स के में तो भी ये रूल फॉलो होगा ना सर? सर उसमें और भी डिटेल में है, क्लॉज है कि उसका जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है, मान लो जारी नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया था, कुछ बहुत सारे उसमें क्लोजेज हैं सर। उसमें जाएंगे ना तो थोड़ा अपना टाइम, उसमें भी है कि अगर उसका रिजल्ट आ गया था, ज्वाइनिंग नहीं दी, रिक्रूटमेंट कब फाइनल हो गया था। नहीं सर, ज्वाइनिंग दे दी थी, ज्वाइनिंग दे दी, उसके बाद इंडक्शन कोर्स के लिए गया, तब भी सर उसको कंसीडर माना जाएगा बिल्कुल, OPS के लिए? ज्वाइन कर लिया 31 दिसंबर। मैं एक वर्ड बोलता हूं, इफेक्टिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003। एम आई जी सर क्लियर? करेक्ट, जी सर करेक्ट मंगीलाल जी। ओके सर। ओके। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी है, ज्यादा इसमें समय नहीं करेंगे। एक भविष्य करके पोर्टल है, और अभी कल ही मैं देख रहा था एक और आ गया है, उसको लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। भविष्य के अलावा एक HRMS आ गया है। बहुत सारे लोगों को ये है, 16/7/2024 का लेटर लेके मैं बैठा हूं। कल रात को मैंने फिर ढूंढा कि कुछ अपडेट तो नहीं आ गया है। तो भविष्य एक पोर्टल है जो ऑनलाइन पेंशन पोर्टल के स्टेटस को, रिटायरमेंट बेनिफिट को ट्रैक करने का एक वेबसाइट है, HRMS। विनीता मैडम माइक बंद कर ले। दोस्तों सभी ध्यान रखें, आप अपने सभी माइक बंद रखें, जब आपको बोलना रहता है तभी चालू करें प्लीज। जी एम आई क्लियर? HRMS है, एक और आ गया है, ठीक है। तो उसके बारे में लास्ट में 1 मिनट में डिस्कस करेंगे, जो हमारा उस पर फोकस नहीं ज्यादा करेंगे। चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है आपको, इनिशियली जो डेफिनेशन है, मीन्स सन और डॉटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेचुइटी अंडर रूल 45 और फैमिली पेंशन अंडर रूल। अब ये याद रख लीजिएगा, रूल 45 किसका है? ग्रेचुइटी का, और फैमिली पेंशन का रूल नंबर 50 है, ठीक है। ये बहुत जगह आएगा। एचओडी कहां डिफाइन है? एचओडी की डेफिनेशन दे रखी है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978, प्रेसिडेंट में और बाई ऑर्डर, या तो प्रेसिडेंट होगा एचओडी, या उसके द्वारा डेलीगेटेड कोई ऑफिसर होगा बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। एचओ मतलब हेड ऑफ द ऑफिस, ये इसकी भी डेफिनेशन दे रखी है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978 एंड इंक्लूड सच अदर अथॉरिटी और पर्सन होम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई द हेड ऑफिस। तो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर किसी और को हेड ऑफ ऑफिस बना देती है, दैट इज ऑल्सो वैलिड। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, ये तो सभी को पता था, एमोल्यूमेंट वर्ड याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। एमोल्यूमेंट का मतलब है बेसिक पे, स्टार लगा रखा है, ये स्टार आगे डिफाइंड है, और एनपीए अंडर रूल 31 में ये दे रखा है एमोल्यूमेंट की डेफिनेशन। पेंशन का रूल नंबर 31 स्टेट्स दैट एमोल्यूमेंट मींस बेसिक प्लस एनपीए, और एक वर्ड दे रखा है एमोल्यूमेंट, एवरेज एमोल्यूमेंट। एवरेज एमोल्यूमेंट का मतलब क्या है? पिछले 10 महीने की, मींस एवरेज एमोल्यूमेंट्स डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग टू रूल 32। अब रूल 32 क्या कहता है? कि रूल 32 कहता है लास्ट 10 महीने का, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, छुट्टी पे था, सस्पेंड हो गया, तो आप इतना याद रखिए, लास्ट 10 महीने का एवरेज कैलकुलेट करना है। एम आई क्लियर? यस सर। लास्ट 10 महीने का बेसिक प्लस एनपीए। एनपीए मेडिकल वालों को मिलता है, हमको नहीं मिलता है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो। यस सर, यस सर। जैसे आपने बताया ना कि लास्ट 10 महीने का, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 2 वैल्यू आ गए। सपोज करिए किसी भी व्यक्ति के लिए
एक हाँ। हो गया 10 मंथ का एवरेज और एक हो गया हाँ। नॉर्मल बेसिक। हाँ। तो दोनों में से कौन से वैल्यू को चूज किया जाएगा पेंशनरी whichever is more beneficial to employee. सर इसमें दो बातें हैं ना कि लास्ट 10 मंथ्स ऑफ बेसिक एंड लास्ट मंथ बेसिक विच एवर इज हायर। whichever is higher, मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब लास्ट मंथ का नहीं, एवरेज नहीं, और सर, लास्ट सुनिए। मंथ का। सर हाँ जी सर। सर, एमोल्यूमेंट का मतलब है बेसिक प्लस एनपीए। एम आई क्लियर? मांगीलाल जी, यस सर। सर मैंने बेसिक पे प्लस एनपीए प्लस डीए भी है क्या इसमें? नहीं सर, देखो मैंने क्लियर कट लिखा, बेसिक और एनपीए, नॉट डीए इज नॉट इंक्लूडेड। No, DA is not a part of the emolument, but NPA is only for the doctors. Yes, not for teachers. Am I clear? Other than doctors, they are not eligible for NPA. Yes. Am I clear? यस सर। तो एवरेज एमोल्यूमेंट और एमोल्यूमेंट में फर्क याद रखिएगा। एवरेज होता है 10 महीने का और एमोल्यूमेंट मतलब लास्ट महीने का जो भी है। तो ये देखो लिखा है बेसिक पे प्लस एनपीए विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज रिसीविंग इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ। मान लो मर गया है कोई आदमी, तो उसकी डेथ को कितना था वो, और रिटायर हो गया है। यहाँ पे एक चीज और है, रिटायरमेंट का वर्ड का मीनिंग आप सभी समझते होंगे अलग है। ये नॉर्मल रिटायरमेंट जो हम सुपरवेन्यूशन मानते हैं वही है, लेकिन एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट आएगा उसका मीनिंग अलग है। तो यहाँ पे देखिए पे, अब पे किसको कहेंगे? ऊपर लिखा बेसिक पे, तो बेसिक पे यहाँ पेंशन रूल में डिफाइंड नहीं है। बेसिक पे फंडामेंटल रूल पे जो की डेफिनेशन फंडामेंटल रूल 921(1)(a) रूल नंबर 9 क्लॉज नंबर 21 सब क्लॉज 1 एंड ए। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रिंसिपल एग्जाम में, वेयर पे इज डिफाइंड। तो फंडामेंटल रूल कब लागू हुए थे, एनफोर्स हुए थे, ये भी एक डेट क्रूशियल है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्या है? 1 एक बार ज्यादा हो गया, सॉरी 1 है, 1/1/1922, ये 11 नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है मेरी, है ना। 1 जनवरी है एक्चुअली, FR1 में डिफाइंड है। अच्छा 1 है वो, सॉरी FR1 में डिफाइंड है कि फंडामेंटल रूल व्हेन केम इनटू फोर्स, ये डेट याद रखनी है। एवरेज एमोल्यूमेंट देख लीजिए सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। एम आई क्लियर? अभी तक किसी को कोई ऐसा परेशानी हो तो बता दीजिए। एवरेज एमोल्यूमेंट मींस एवरेज एमोल्यूमेंट शैल बी डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द एमोल्यूमेंट्स ड्रॉन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ ऑफ सर्विस। ये भी डेफिनेशन दे रखी है, रूल नंबर 32 था शायद, मैंने अगर ऊपर भूला नहीं हो तो। एम आई क्लियर? हाँ बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी ग्रेचुइटी का मतलब क्या है? ग्रेचुइटी मींस इंक्लूड्स सर्विस ग्रेचुइटी, रूल नंबर 41 में दे रखा है। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी अपने आप में एक टॉपिक है, अभी उसको डिस्कस यहां नहीं करेंगे प्लीज, है ना। ये 3 तरह की ग्रेचुइटी जो है इंक्लूडेड है। इसमें डेथ ग्रेचुइटी मैंने लिखा हुआ नहीं देखा, लेकिन मेरा समझ कहता है डेथ ग्रेचुइटी भी ग्रेचुइटी में इंक्लूडेड होनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ मुझे नहीं मिला। नहीं सर, ठीक है, है सर। ठीक है, उसमें रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के साथ ही डेथ ग्रेचुइटी है, रूल 45। ठीक है, ओके। पेंशन का मतलब क्या है? पेंशन इंक्लूड्स ग्रेचुइटी अनलेस कॉन्ट्ररी टर्म इज नॉट यूज। जब तक पेंशन के साथ कॉन्ट्ररी टर्म यूज नहीं किया जाता तो पेंशन में ग्रेचुइटी इंक्लूड है। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं, कॉमन टर्म है। अब एक टर्म और आती है क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर्ड वाइल ऑन ड्यूटी। जो भी सर्विस आपने ड्यूटी की है वो सारी क्वालिफाइंग सर्विस है। अब सर ड्यूटी किया है, ड्यूटी की डेफिनेशन फंडामेंटल रूल 9(6) में डिफाइन कर रखा है। ड्यूटी इंक्लूड्स सर्विस एज ए प्रोबेशनर और अप्रेंटिस प्रोवाइडेड दैट सच सर्विस इज फॉलोड बाय कंफर्मेशन। कोई प्रोबेशनर था, कोई जो है अप्रेंटिस था और उसको बाद में कंफर्म किया। आप सबको पता होगा, हम सब 2 साल के प्रोबेशन पे होते हैं। ज्वाइनिंग टाइम वो भी आपका क्या है,
ड्यूटी का पार्ट है। ठीक है, अगर अब एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे रखा है, अगर कोई चीज यहाँ डिफाइन नहीं है तो कहाँ देखें हम? फंडामेंटल रूल को रेफर करना। अगर किसी के मान लो सपोज ज्वाइनिंग टाइम पेंशन में डिफाइन नहीं है तो कहाँ जाके देखेंगे? फंडामेंटल रूल में देखना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग टाइम का मतलब क्या है। उसकी भी फिर कभी होगी तो देखेंगे, एक आध क्लास जो है अपन करेंगे। नेक्स्ट, अब सबसे पहली बात ये तो डेफिनेशन पार्ट खत्म हो गई। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस एंड पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई। अगर ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होते तो क्या होगा? प्रोवाइड दैट इट शैल बी ओपन टू हिम विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस परमानेंट ट्रांसफर। या तो उसका परमानेंट ट्रांसफर हो गया है और ही इज ऑन लीव ऑन दैट डे, जिस दिन जो है उसका ट्रांसफर हुआ है उस दिन लीव पे था। देन विद इन 6 months, ये डेट याद रख लीजिएगा, कितने टाइम में? ऑफ हिज रिटर्न फ्रॉम लीव। या तो छुट्टी पे गया तो छुट्टी से आने के 6 महीने बाद, और अगर ड्यूटी पे है तो ट्रांसफर के 6 महीने के बाद। विच एवर इज लेटर, जो भी लेट है, टू इलेक्ट टू बी गवर्न्ड बाय द पेंशन रूल टू विच ही वाज सब्जेक्ट टू इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ हिज ट्रांसफर टू द अथॉरिटी हु हैज ट्रांसफर्ड हिम ओनली वन टाइम। ये ऑप्शन एक ही बार एक्सरसाइज किया जा सकता है कि उसको कहाँ रहना है। सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। कोई आदमी अगर मान लो ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया, लेट अस से सपोज समवन इज ट्रांसफर्ड टू सम अदर प्लेस वेयर दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। अगर ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया है तो उसको क्या करना है? तो उसको चूज करना पड़ेगा, भाई क्या करना है मुझे, 6 महीने के अंदर तय कर लेना है। क्या ऐसी जगह का बता सकते हैं सर जहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते, पेंशन रूल? सर ऊपर आपने PSUs हो सकती हैं। पीएसयू हो सकती है। मान लो कोई डिपार्टमेंट कन्वर्ट हो गया ऑटोनोमस बॉडी में सेंट्रल गवर्नमेंट से, सर डेपुटेशन पे चला जाएगा दूसरा डिपार्टमेंट में तो वो नहीं भी सर सुनिए, मैं डेपुटेशन पे गया और वहीं एब्जॉर्ब हो गया। जी 6 महीने से ज्यादा का डेपुटेशन हो तो नहीं तो नहीं इस सर, ये category में सर मिक्स मत कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है ऊपर, आप इसको पढ़िए, फर्स्ट पैरा का लास्ट लाइन पढ़िए कि देखो मैं फिर से पढ़ देता हूं। गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई। सर्विस, ऐसी सर्विस में चला गया, ऐसी पोस्ट में चला गया जहां ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। प्रोवाइड दैट इट शैल बी ओपन टू हिम विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ हिज परमानेंट ट्रांसफर। उसका परमानेंट ट्रांसफर का ऑर्डर कब हुआ? ओके सर, यस विद इन 6 months लिखा है। विद इन 6 months में उसको इलेक्ट कर लेना कि भैया वहां रहना है या इसमें वापस आना है। या कोई डिपार्टमेंट कन्वर्ट हो गया मान लो, फिर क्या करोगे? और ये ऑप्शन एक ही बार एक्सरसाइज कर सकता है। एम आई क्लियर? यस सर। नेक्स्ट रूल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस द डे ऑन विच गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स। कब से फैमिली पेंशन मिलेगी? द डे ऑन विच गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड और इज डिस्चार्ज और इज अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस। या तो उसने रेजिग्नेशन दिया है या उसने जो क्या किया है, सर्विस से डिस्चार्ज हो गया, किसी कारण से निकाल दिया है, या फिर उसने जो है रिटायर हो गया है, तो उसके अगले दिन से उसको पेंशन, उस दिन की तो पे पा गया वो। एम आई क्लियर? इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट से जस्ट पहले उसकी डेथ हो गई या एब्सेंट था ड्यूटी से या और कुछ कारण था और वाज सस्पेंशन में था, तो डे ऑफ रिटायरमेंट और द डेथ शैल बी पार्ट ऑफ लीव और एब्सेंस ऑफ सस्पेंशन। एब्सेंस और सस्पेंशन, अगर मान लो जो है वो सस्पेंशन में था, रिटायरमेंट से पहले डेथ हो गई या छुट्टी पे था, तो वो दिन जो है लीव का पार्ट माना जाएगा। एम आई क्लियर? सर अगर पॉसिबल हो तो इस आखिरी वाले लाइन के लिए कुछ डेट के एग्जांपल से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं लेटस मैं अपने ऊपर ही लेता हूं, मैं मान लो 1/1/2026 को रिटायर होने वाला था। ओके, नॉर्मल केसेज में रिटायर हो गया तो मुझे 2/6 से पेंशन मिल जाएगी, 2/2 से पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके पहले मैं छुट्टी पे था 1/1 से पहले,
ठीक है, या फिर उसके पहले मैं सस्पेंड हो गया था या उससे पहले डेथ हो गई थी, ठीक है, तो वो जो डेथ वाला दिन है या जो सस्पेंशन वाला दिन है या जो एब्सेंट वाला दिन है वो लीव का पार्ट माना जाएगा। ओके सर। एम आई क्लियर? सर डेथ वाला दिन तो ड्यूटी का दिन माना जाता है ना? नहीं मैडम, ये लिखा हुआ जो मैं लिखा हुआ वो बोल रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, छुट्टी पे था और डेथ हो गई तो वही मैंने कहा, ठीक। ऑन ड्यूटी था और मर गया तो ऑन उसकी ड्यूटी ड्यूटी माना में। जाता है, ऑन ड्यूटी नहीं होती तो माना जाता लेकिन है। मान लो, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, आपने लेटेस्ट से आपने 1 तारीख से 10 तारीख तक की छुट्टी ली और 5 तारीख को लेटेस्ट से, मैं सभी के लंबे आयु की कामना करता हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए रख रहा हूं। सपोज मैंने 1 से 10 तक छुट्टी ली और 5 तारीख को मेरी डेथ हो गई, तो 5 तारीख जो है छुट्टी गिनी जाएगी। एम आई क्लियर? छुट्टी में तो छुट्टी गिनी। ठीक है, क्या बोला सर लास्ट वाला? अगर मान लो कोई पर्सन 1 से 10 तक क्या था, छुट्टी पे था, ओके, और 10 तारीख तक उसकी डेथ हो गई, 10 तारीख को ही हो गई मान लो, तो उसकी डेथ वाला दिन छुट्टी गिनाई जाएगी। ओके, एम आई क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है सर, नेक्स्ट। अब एक बात और आती है कि एक आदमी को कितनी पेंशन मिलेगी, कोई डिस्क्राइब कर सकता है? एक आदमी को मैक्सिमम कितनी पेंशन मिलेगी? नंबर ऑफ पेंशन की बात कर रहा हूं। डिफेंस वालों को तो 2, बाकी सबको 1 मिलेगी। मान लो एक आदमी एक सर्विस से गया, सिविल में ही गया, ठीक है, एक से दूसरी मिलेगी उसको? नहीं, सिंगल मिलेगी सर, सिंगल पेंशन। डिफेंस वालों को 2 मिलेंगी, बाकी सबको सिंगल। ठीक है सर, यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट शेल नॉट अर्न 2 पेंशन इन द सेम सर्विस, एक ही सर्विस में, सिविल सर्विस एक ही है, और पोस्ट एट द सेम टाइम और बाय द सेम कंटिन्यूस सर्विस। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह जाते हैं और आपकी सर्विस कंटिन्यू काउंट हो रही है, तो आपको एक ही सिविल सेक्टर से पेंशन मिलेगी, डिफेंस वालों को 2 मिल सकती है। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या कहता है? पेंशन एंड फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग विदहोल्ड और विदड्रॉ ए पेंशन और पार्ट ऑफ आपकी अपॉइंटमेंट। एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, ये देखो पॉइंट नंबर 7। सपोज लेटर से मेरी पत्नी मान लो सर्विस में थी, रिटायर हो गई, उसकी पेंशन मुझे मिल रही है, ठीक है, और वो पैसा देती नहीं मेरे को, और उसके साथ में जो है उसका सपोज मर्डर कर दिया किसी ने और उसका एलिगेशन मेरे पे, तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। या कोई पेंशनर ने ही कुछ ऐसा का मर्डर कर दिया है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। यहां पे फ्यूचर गुड कंडक्ट मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा, पेंशन इज सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। एम आई क्लियर? और इसके अलावा एक हमारे प्रेसिडेंट साहब को फुल पावर है, द प्रेसिडेंट रिजर्व हिमसेल्फ द राइट ऑफ विदहोल्डिंग ए पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ इन और पार्ट। प्रेसिडेंट साहब के पास फुल पावर है, किसका? किसी की पेंशन रोकने का, चाहे फुल्ली रोके, चाहे पार्टली रोके, या विड्रॉ कर ले, या कुछ टाइम के लिए विदहोल्ड कर दे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, एंड ऑर्डरिंग रिकवरी फ्रॉम ए पेंशन और ग्रेचुइटी ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस caused to the government if any department or judicial proceeding the pensioner found guilty of grave misconduct। यहाँ पे याद है, अगर कोई पेंशनर जिसने गवर्नमेंट का कोई बड़ा लॉस कर दिया है, ग्रेव मिसकंडक्ट कर दिया है, गिल्टी है उसका, या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसकी पेंशन रोकने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन 2021 में आया तो प्रेसिडेंट, और यही क्वेश्चन अगर 2026 में आ गया तो यूपीएससी।
ऑथोरिटी का नाम पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन और कर सकता है प्रेसिडेंट के अलावा। अमेंडमेंट आ गया है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में ये था कि अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया है, पिक्यूनरी लॉस किया, तो प्रेसिडेंट को पावर, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है यूपीएससी शैल बी कंसल्टेड बिफोर फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। यूपीएससी से कंसल्ट करना है। कोई पॉलिटिकल साइंस का है क्या? क्या प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू फॉलो द गाइडेंस और कंसल्टेशन गिवन बाय यूपीएससी? कोई पॉलिटिकल साइंस का बता दे प्लीज। It is a directive principle. He is not bound to follow. Yes. They can only give the direction, but president is not bound to follow. प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उसको फॉलो करे या ना करे। राइट, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। वो अपना मेरा नॉलेज सजेशन भी भी, दे सकते हैं। हाँ, सजेशन मानना नहीं मानना प्रेसिडेंट का राइट है। यस सर। टीना मैडम हाथ नीचे कर लीजिए, थक जाएंगे मैडम। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? ये टॉपिक ऐसा ही है। नो सर, नो सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अगर किसी के खिलाफ निकाल के दिखाइए मांगीलाल जी को कि क्लास इंटरेक्टिव चल रही है। रियली सर, वी आर एंजॉयिंग। अब देखिए एक चीज चल रही है, बहुत अच्छी। अब किसकी करेगा? मान लो किसी की रूल 16 में इंक्वायरी चल रही है, तो क्या उसकी पेंशन हेल्ड की जा सकती है? अब सर कहोगे रूल 16 क्या है? सीसीए रूल 16 माइनर पेनल्टी है सर। वेरी गुड। और रूल 14 मेजर पेनल्टी। तो अगर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसकी पेंशन जो है नहीं दी जाएगी, प्रोविजनल पेंशन मिलेगी, ठीक है। अगर रूल 14 में इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है, अब इनको इसकी भी डेफिनेशन है कब जो है प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड। एक वर्ड नोट कर लीजिए प्लीज, पेन पेपर हो तो। व्हेन द जुडिशियल प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, कब मानी जाएगी कि स्टार्ट हो गई है? कोई साथी जिसने सीसीए चार्जशीट दे दी जाए सर, चार्जशीट दे दी जाए तब। यस, वेरी गुड, थैंक यू मैडम। तो जब चार्जशीट मिल गई है उसको, ठीक है, तब से मानी जाएगी कि उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। तब तक उसको क्या मिलेगा? एक प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अंडर रूल 16 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965 while the government servant was in service or continued after retirement shall have no effect on pension। और रूल 16 में पेंशन पे और ग्रेचुइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल 14 की इंक्वायरी चल रही है तो पेंशन रोक दी जाएगी। तब तक क्या मिलेगा? प्रोविजनल पेंशन। क्यों मिलेगी? कोई साथी? He has all the rights to live. Yes. आर्टिकल उसको जिंदा रहने का आर्टिकल 21, he has the right to life and liberty। Am I clear? तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अभी बता दिया। अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार स्टार लगा रखा है, इसकी डेफिनेशन नीचे डिफाइन कर रखी है। इफ नॉट इंस्टीट्यूटेड व्हाइल द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज इन सर्विस वेदर बिफोर हिज रिटायरमेंट और ड्यूरिंग हिज री एम्प्लॉयमेंट। अगर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट है तो उसकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। सेल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड सेव विद द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट का, कोई फॉर्मेट 2 है, मैंने भी नहीं देखा। अगर प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं है तो किसी की पेंशन नहीं रोकी जा सकती। सेल नॉट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट विच टुक प्लेस मोर देन 4 years। ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं या आया हुआ मुझे याद नहीं है। किसी एक आदमी रिटायर हो गया 10 साल, अब आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसने घपला किया, घोटाला किया, विद इन 4 years हो सकते। ये हाँ, तो ये याद रखिएगा 4 years का टाइम है। अगर रिटायरमेंट से 4 साल के अंदर अंदर आपने कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो टाटा बाय बाय। द डेट ऑफ ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ चार्ज इज इश्यूड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये डिफाइन कर रखा है कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर उसको चार्जशीट सर्व हो गई है तो। यहां तक अगर किसी साथी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से बता दें। एक मेरे पास केस भी है, बाद में डिस्कस करूंगा, जिसको क्या है कि उसका प्रमोशन रोक दिया, चार्जशीट नहीं मिली। इज इट लीगल और इलीगल? चार्जशीट बाद में दे दी, प्रमोशन पहले रोक दिया।
गलत है सर। चार्जशीट नहीं मिली तो फिर लीगल नहीं है सर। हमारे हमारे मेरे पास एग्जांपल है, छोड़ो उस पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोविजनल पेंशन क्या है? इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिटायर्ड ऑन अटेनिंग एज ऑफ सुपर एन्यूशन। एज ऑफ सुपर एन्यूशन कितनी है हमारे लिए? 60। कई जगह 58 है, कई जगह 62 है, कई जगह कुछ अलग है, 65 है, ठीक है ना। तो सुपर एन्यूशन की जो भी एज डिसाइड है उस डिपार्टमेंट के लिए वो मानी, हमारे लिए 60। और अदरवाइज किसी और कारण से भी एंड अगेंस्ट होम डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड, जिसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। अंडर रूल 14 में अगर है प्रोविजनल पेंशन इज प्रोवाइडेड एंड शेल बी सैंक्शन, रूल 14 की इंक्वायरी चल रही है तो उसको प्रोविजनल पेंशन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रेफर्ड टू सब रूल 3, ऊपर दे रखा सब रूल 3, द अकाउंट्स ऑफिसर शेल ऑथोराइज द प्रोविजनल पेंशन। कितनी देगा प्रोविजनल पेंशन? मैक्सिमम विच वुड हैव बीन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। कितनी देगा? क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी दे देगा, ठीक है। अभी मैक्सिमम कितना आगे डिफाइन है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तक जितनी होनी चाहिए। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही वाज अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट अप टू द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही वाज अंडर, सस्पेंड हो गया तो नेचुरल है, प्रोसीडिंग चल रही है तो सस्पेंड होगा, तो सस्पेंशन से एक दिन पहले तक जो उसकी पे थी उसके हिसाब से क्वालिफाइंग सर्विस जितनी भी थी उतनी पेंशन दे देगा। थोड़ी लॉ की भाषा ऐसी है, क्या करूं मैं, है ना। और ग्रेचुइटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, ईएल एनकेसमेंट भी रोका जा सकता है, ठीक है। लकी साहब प्लीज म्यूट योर माइक। बीएल लकी साहब, ठीक है। यस। और कब वापस पूरी मिलेगी? जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग का। अब कोई बताएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होगी और डिपार्टमेंटल कब होगी? फर्स्ट डिपार्टमेंटल देन जुडिशियल। नहीं, किसी ने मर्डर कर दिया है ना, किडनैप कर लिया तो पहले जुडिशियल, देन फर्स्ट। कोई क्रिमिनल केस है तो जुडिशियल, अदरवाइज डिपार्टमेंटल। यस, ओके। द provision of this sub rule not applicable where allegation of misconduct are under investigation। ये सब misconduct के allegation पे applicable नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। अब मिसकंडक्ट की डेफिनेशन कहां दे रखी, किसको मिसकंडक्ट मानेंगे? इट इज अ वेरी वेग टर्म। तो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, रूल नंबर 8 सब रूल 8(1)(1)(3)। एनी करप्ट प्रैक्टिस, अगर आपने कोई करप्शन किया तो मिसकंडक्ट है। एनी मिसकंडक्टर वेदर इन रिलेशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, अगर आपके ने परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, ये बड़ा वेग टर्म है, और अदरवाइज कुछ और किया है, ठीक है। एनी मिसकंडक्टर वेदर रिजल्टिंग इन पिक्यूनरी लॉस, टू गवर्नमेंट को कोई लॉस कर दिया आपने, ठीक है, जानबूझ के आग लगा दी है, पैसा वेस्ट कर दिया है, कुछ भी, अगर गवर्नमेंट का पैसे का लॉस हुआ है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है थोड़ा सा नीचे कीजिए, ये एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। कोई आदमी है ना, इसका एक एक्सेप्शन है, कोई आदमी एम्प्लॉयमेंट कब ले सकता है? अगर ग्रुप ए ऑफिसर है तो रिटायरमेंट के 1 साल बाद तक कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। तो हम सब जो भी आगे बनने जा रहे हैं हमें ध्यान रखना है, 1 साल की नौकरी रिटायरमेंट के बाद 1 साल का वेट करना है कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना है तो, नहीं तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? कोई साथी मेरा, इट इज फॉर ग्रुप 1 ओनली सर, ग्रुप ए ओनली के लिए है, ग्रुप बी सी डी के लिए नहीं है। So that they may not directly get the benefit of the post they were holding। Yes, ठीक है, उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेना है और एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही जो है जॉब ज्वाइन करना है, ठीक है। ग्रुप ए ऑफिसर हम बनने जा रहे हैं सब, 1 साल तक कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर पेंशन रुक सकती है, बहुत सारों के पास तो है नहीं पेंशन, ठीक है।
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के पास फुल राइट है, बहुत सारी चीजें हमारे से विड्रॉ भी कर सकती है। नेक्स्ट, इसका एक एक्सेप्शन है इस रूल का, प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू टेक अप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग हिज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट और ड्यूरिंग द रिफ्यूज्ड लीव shall not be required to obtained subsequent permission। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे गया है और उस समय कुछ पर्टिकुलर टाइप्स है वो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। उसमें हम कुछ एग्जांपल है, जैसे कोई मान लो आदमी है, सपोज म्यूजिशियन है, अब वो म्यूजिशियन का काम करेगा, क्या दिक्कत है उसको, है ना, बट उसकी पावर और पोजीशन का जो है वो इस्तेमाल होकर वो जॉब नहीं मिली होनी चाहिए, ठीक है। सेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू, उसको अगर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट है और उस समय जो उसने मांगा और डिनाई कर दिया। एक चीज फिर से पढ़ देता हूं, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू टेक अप पर्टिकुलर, एक तो परमिट कर दिया उसको, ड्यूरिंग हिज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट और ड्यूरिंग रिफ्यूज लीव सेल नॉट बी रिक्वायर्ड। अगर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम परमिट कर दिया है या रिफ्यूज कर दिए तो फिर उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? यहां तक अंगूठा दिखा दे तो मुझे पता लगे कि हाँ भाई मैं सर ये जो और बिल्कुल सर है हाँ इसका वैसे भी नहीं समझ। जी जी हाँ। एम आई क्लियर सर? प्लीज Yes, नेक्स्ट। सर हमारे जो सबसे ज्यादा अंगूठा दिखाते थे मोनिका मैडम, वो बार बार मैसेज करी कि काम सर, निकलने के आप बाद मुझे- वैसे भी सर दुनिया में अंगूठा दिखाने की आदत है। नहीं सर ड्यूरिंग रिफ्यूज लीव, सर ड्यूरिंग रिफ्यूज लीव नहीं समझ आ रहा क्या है ये ड्यूरिंग रिफ्यूज नहीं सर, मैं क्लियर कर देता हूँ, लेट मी मेक इट क्लियर। अगर किसी ने लीव मांगी प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट और लीव रिफ्यूज कर दी तो भी उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके अब देखो क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब क्या है, 10 नंबर में दे रखा है, सर्विस ड्यूरिंग सस्पेंशन। एक मिनट इसको सर थोड़ा छोटा कीजिए, इंक्लूडेड वाला है, एक मिनट। क्वालिफाइंग सर्विस मींस सर्विस, ऊपर कीजिए, यही है क्या? क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस ड्यूरिंग सस्पेंशन, सर्विस रेंडर्ड बिफोर 18 years of age, service rendered as casual labor, service rendered under central government if employee submits technical resignation। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें से कौन सी सर्विस जो इंक्लूड नहीं होगी या होगी, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ। ये सारे सर नहीं होंगे ना? देखिए भी हो सकता है। सर सर्विस ड्यूरिंग सस्पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस में आएगा अगर वो रिवोक्ड हो जाते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए क्वालिफाइंग सर्विस में सस्पेंशन का बाद में डिसाइड होगा कि वो सर्विस इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये तो है पीरियड्स जो दोज हु आर नॉट काउंटेड इन क्वालिफाइंग सर्विसेज, वो बता रहे हैं ना। हाँ ठीक है, वो बाद में तय होगा कि उस पीरियड को क्या माना जाएगा, ठीक है। 18 ईयर से पहले वाली इंक्लूड नहीं होगी, कैजुअल लेबर है तो उसकी इंक्लूड नहीं होगी, सर्विस रेंडर्ड अंडर गवर्नमेंट इफ एम्प्लॉय सबमिट टेक्निकल रेजिग्नेशन से किसी दूसरी जगह पे गया है तो उसकी सर्विस काउंट हो जाती है, क्वालिफाइंग सर्विस में गिनी जाती है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अभी के लिए ये इसका ऑप्शन अगर 4 में से एक चुनना हो तो हम डी चुनेंगे क्वालिफाइंग सर्विस में। सर टेक्निकल रेजिग्नेशन को थोड़ा समझा दीजिए प्लीज। टेक्निकल रेजिग्नेशन ये है, मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दे दूं। आप सबने नवोदय का फॉर्म भरा होगा, ईएमआरएस का फॉर्म भरा होगा, बहुतों ने। अब आप यहाँ सेलेक्ट हो गए नवोदय या जो है उसमें आपके लीन वर्ड है, लीन का मतलब होता है राइट, एक तरह का राइट है टू रिटेन योर सर्विसेज 2 इयर्स तक। अब अगर आपको मान लो जाना है दूसरे डिपार्टमेंट में तो आप यहाँ से रिजाइन करोगे, वो रिजाइन एक टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा, नहीं तो अगर ऐसे ही रेजिग्नेशन दे के गए बिना परमिशन के मतलब एक वापसी का एक उसका ऑप्शन होगा। हाँ, वापसी का एक ऑप्शन होता है, वो लीन पे जाते हैं 2 साल के लिए, है ना। मंगीलाल सर यदि आप अनुमति दे तो मैं 1 मिनट बोलूं लीन पे। बिल्कुल बोलिए ना।
जी, ये लीन आप ऐसा नहीं है कि आप बाद में कभी भी मांग सके। जब आप अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए, उस समय आपको एडवर्टीजमेंट का पूरा एक फोटोकॉपी सबमिट करना होता है प्रिंसिपल को बताने के लिए कि आई एम अप्लाइंग इन दिस डिपार्टमेंट, ये पोस्ट है। और वो जो पोस्ट है आपकी पोस्ट से हायर पोस्ट होना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट में। और आप अपना सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करेंगे। इन केस ऑफ सिलेक्शन आप अपना सिलेक्शन लेटर दिखाएंगे और फिर उसके बाद में आप 10A फॉर्म भरेंगे, तब कहीं जाके आप लीन के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के बाद में आप सीधा मांगे कि मुझे लीन दीजिए, तो आपको लीन नहीं मिलेगा। यू नीड टू गो थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रोसेस बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर लीन। सर मंगेलाल जी। यस सर, एक चीज क्लियर कर देता हूं सर, उसमें जो मैं भी एक बार इस बात पे जो है आर्ग्यूमेंट हुआ था, हायर पोस्ट के लिए उसमें लिखा ये है एम्प्लॉइज आर एनकरेज टू अप्लाई फॉर हायर पोस्ट, ठीक है ना, इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके सर, ठीक है, मेरे भी एक बार मैंने अप्लाई सर, आई थिंक इक्विवेलेंट पोस्ट पे भी हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए कोई पीजीटी जा तो वो मैं कहता हूँ क्लर्क के लिए भी जा सकता है, एक पीजीटी क्लर्क के लिए जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, मैडम सर ने दे मे रिलीव और दे मे नॉट रिलीव, एम्प्लॉय आर एनकरेज, वर्ड ये लिखा है उसमें। सर मैं भी टेक्निकल डेजिग्नेशन स्टेट गवर्नमेंट सिक्किम से देके आई हूँ, वहाँ पे देयर वाज अ पीजीटी और यहाँ पे फैमिली इश्यूज की वजह से मैंने टीटीटी। मैंने क्या कहा, दे आर एनकरेज, दे आर नॉट बाउंडेड, इवन आई कैन गो फॉर ए क्लर्क, या एनकरेज नॉट मैंडेटरी। हाँ, और वो सर्विस काउंट हो जाता है सर, सर्विस मेरी काउंट हो गई इफ कम्स थ्रू प्रॉपर चैनल। हाँ, प्रॉपर चैनल ही आया है सर। जब परमिशन मिलती है तो काउंट होगी, परमिशन मिल जाती है आफ्टर टेकिंग एनओसी। हाँ, एनओसी के बाद तो जीपीएफ भी कंटिन्यू हो रहा है सर, तो ये दो चीजें हो गई काउंटिंग तो ये क्वालिफाइंग सर्विस होगा। बट सर लोअर पोस्ट में आई थिंक पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है ना, उस पे अपन फिर डिस्कस करेंगे, है ना, एक बार उसको मैं भी पूरा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। तो ये कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, हाँ सर बताइए। पे प्रोटेक्शन आपको इसलिए नहीं मिलेगा लोअर पोस्ट में मैडम, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर सैलरी पे, तो लोअर सैलरी पे आपको क्या पे प्रोटेक्शन। अगर आप टीजीटी से पीजीटी जाते हैं या पीजीटी से प्रिंसिपल जाते हैं तो, या सेम पोस्ट पे जाते हैं तो आप पे प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो इसीलिए मैंने बाद में अप्लाई ही नहीं किया, जैसे मुझे पता चला ना कि जूनियर पोस्ट पे वो पे प्रोटेक्शन नहीं था, अगर सेम या हाई वन में है तभी आपको होता है ना। ठीक है दोस्तों, ये जो मांगीलाल जी पढ़ा रहे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे। सिलेक्शन होना नहीं होना इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन हमें अपने अधिकारों के विषय में पता होना चाहिए, हमारे चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने अप्लाई किया था इसलिए मुझे पता है जी। हम पूरे 20 साल सर्विस कर लेते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि दीज आर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। और पेंशन एक ऐसी चीज है कि हम उसकी टेंशन लेते ही लेते हैं, तो टेंशन ना ले, बहुत अच्छे से सब लोग। नहीं तो बोलाराम का जीव कहानी पढ़ लीजिएगा, हिंदी की बड़ी फेमस कहानी है पेंशन के विषय में, बहुत अच्छी है सर। ठीक है। द कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट वेदर द पेंशनर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ एनी फैक्टर मेंशन इन क्लॉज बी टू क्लॉज जी ऑफ सब रूल 3। ऑनलाइन क्लास गवर्नमेंट में लिबर्टी टू ग्रांट परमिशन, गवर्नमेंट की लिबर्टी है कि वो परमिशन दे या नहीं दे, ऑफ ए फॉर्म, डायरेक्टरशिप ऑफ ए फॉर्म और कंसल्टेंसी टू प्रैक्टिस इन ए प्रोफेशनल एरियाज। गवर्नमेंट की मर्जी है वो दे या नहीं डायरेक्टरशिप करने की किसी फॉर्म में, प्रोफेशनल एरिया में। एक्टिवली इनकरेज पोस्ट सर्विस एम्प्लॉयमेंट इन साइंटिफिकली, इसमें इनकरेज करती है। लिटरेरी या कल्चरल में आप जाओ, आर्टिस्टिक, मैंने अभी म्यूजिशियन का एम्प्लॉयमेंट दिया था। नेक्स्ट सर, थोड़ा ऊपर कीजिए। नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनररी एंड पेड एम्प्लॉयमेंट। अब आप कहोगे साहब मैं तो ऑनररी में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं है आप पेड में जा रहे हो या ऑनररी में जा रहे हो। बी लिबरल इन ग्रांटिंग परमिशन फॉर पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। लिबरल होना है, नॉन गवर्नमेंट से एनजीओ वगैरह में जाते हैं तो आपको जो ज्यादा रिजिड नहीं होना है। आप भी कल ऑफिसर बनेंगे, कोई आपसे परमिशन मांगने आएगा तो प्लीज ये क्राइटेरिया ध्यान रखें, नहीं तो क्या होता है बाबू बना के ले आता है, हम लोग साइन करते हैं ज्यादातर केसेस में। प्लीज ऐसा नहीं करें, किसी की लाइफ और लिबर्टी का, लाइफ और करियर का सवाल होता है इवन आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया कुछ ध्यान रखने हैं बिफोर ग्रांटिंग परमिशन। नेक्स्ट, इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है,
नेक्स्ट प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी सर, किसी साथी का माइक चालू है, हाँ। बैकग्राउंड से बच्चे की आवाज आ रही, प्लीज। माइक मेरा ही बच्चा जो पास में से चिल्ला रहा है सर, अंदर दरवाजा बंद करके मैं बैठा हूँ, है ना। जी 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 जी। तो अब मान लो किसी ने परमिशन मांगी, कितने दिन में दे देनी है? 30 डेज में दे देनी है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन करता है। और रिफ्यूजल एनी, मैं पढ़ देता हूँ, परमिशन द एप्लीकेंट में within 30 days of receipt of order of government to that effect make representation against 30 days में उसको representation देना है। any such condition अगर refuse किया है और refusal and the government में make such orders thereon if it deems fit, 30 days में उसको representation देना है, फिर गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी कि परमिशन देना है कि नहीं देना है। कोई रीजन दिया उसको, उसके अगेंस्ट में within 30 days उसको रिप्रेजेंटेशन दे देना है। if the commercial employment after retirement taken without permission, he shall not be entitled to whole or such part of pension। प्लीज ये जो साथी जीपीएफ में है या जो दूसरे भी हैं, प्लीज इवन आप किसी भी पेंशन स्कीम में है, ये याद रखिए आपकी पेंशन रोकी जा सकती है आपने अगर ले लिया तो, और किसी ने कंप्लेन कर दी तो। और आजकल प्रूव करना बड़ा आसान है। 1 साल के अंदर रिटायरमेंट के आपको जॉब लेने से पहले परमिशन लेनी है। रूल नंबर 10, आफ्टर रिटायरमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया प्रीवियस परमिशन लेनी है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। आप फॉरेन गवर्नमेंट की कोई जॉब ले लेते हैं, इतना इसमें लिखा है, ठीक है, तो आपको प्रीवियस परमिशन ले लेनी है बिफोर एक्सेप्टेंस सच एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नहीं तो आपकी पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सर, इस स्लाइड में इतना ही है, इसका समरी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रूल नंबर 11, क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? अब मंगीलाल सर। यस सर। सिर्फ ग्रुप ए के लिए ये है ना? ये ग्रुप ए के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वहीं आपके पास पावर होती है। जी जी जी, ठीक। टीचर के पास, ग्रुप सी के पास, क्लर्क के पास या और किसी के पास कोई पावर नहीं होती है। टीचर तो निरीह प्राणी हाँ, शिक्षक एक निरीह प्राणी है, प्रेमचंद जी बहुत बरस पहले लिख के गए हैं। ठीक है, मेरा नहीं है स्टेटमेंट, ये प्रेमचंद जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, रूल नंबर 11, क्वालिफाइंग सर्विस। इतनी देर हमने बात की है ना, क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, कब से स्टार्ट होगी? सेल कमेंस फ्रॉम द डेट ही टेक्स चार्ज ऑफ ए पोस्ट टू विच ही इज फर्स्ट अपॉइंटेड आइदर सब्सटेंटिवली और इन ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी कैपेसिटी। अब ये देखिए 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने जिस दिन चार्ज लिया उस दिन एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे गए तो चार्ज लोगे, या एक जगह से दूसरी जगह गए तो चार्ज लेते हो। फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट आपकी, या आप ऑफिशिएटिंग करने के लिए दे दिए गए, या टेम्परेरी थे बाद में परमानेंट हो गए, तो वो सारी जो है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस उस डेट से स्टार्ट होती है। प्रोवाइडेड दैट ऑफिशिएटिंग और टेम्परेरी सर्विस फॉलोड विदाउट इंटरप्शन, दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। Am I clear? तो अब क्या क्या इंक्लूड है? अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है और एग्जाम में हम लोग अक्सर जो है भूल जाते हैं, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है एक टेबल की फॉर्म में। क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है? ड्यूटी एंड पे रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जो भी ड्यूटी है और पे है। 1 सेकंड सर होल्ड करना, बच्चा है ना उसको बाहर कर देना। जी 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 दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं क्वालिफाइंग सर्विस, और मैं समझता हूँ अभी तक आपकी पेंशन से संबंधित सारी चीजें क्लियर होती जा रही होगी। मांगीलाल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्लाइड को बनाया है। इट इज हैंडमेड, यू कैन सी, उन्होंने खुद ने बड़ी मेहनत की है और बनाया है, और अभी तक नॉन स्टॉप ही हैज बीन एक्सप्लेनिंग ब्यूटीफुली। ठीक है सर, एंड वी हैव बीन अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। यस सर। तो देखिए सर, ये याद रखने की बात है ताकि दोनों सामने सामने रहे। ड्यूटी और पे रेगुलेटेड, गवर्नमेंट की पे से आपने जो भी सर्विस की है वो सारी, या ड्यूटी की है वो सब सर्विस में इंक्लूडेड है। लेकिन सर्विस रेंडर्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर से पहले कोई अगर की है, या मिलिट्री सर्विस है, तो वो आपकी, अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, मिलिट्री सर्विस की सर्विस को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशन है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन 18 ईयर से पहले की सर्विस को इंक्लूड नहीं करना। अगर मान लो कोई 17 साल में लग गया था, ठीक है ना, तो 15 साल में मिलिट्री वालों का काउंट होगा ना सर? एक्सेप्शन है, इसके भी कुछ कंडीशन है ना।
कुछ कंडीशन है। जी हमारी सर्विस सिविल सेक्टर की कहती है 18 ईयर से पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब किया है तो वो वैलिड नहीं है, माइनर है वो। क्यों है ऐसा कोई बता सकता है? मान लो 17 साल के बच्चे की सर्विस क्यों नहीं वैलिड है? आई गेस सर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर लीगल। नहीं he शायद has no right to vote, therefore he is not नहीं सर, जो पहली बात है वो ठीक है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नो पर्सन कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट हु इज माइनर। ठीक है सर। तो दूसरी बात है इंक्लूडेड क्या है? सर्विस रेंडर्ड अंडर स्टेट गवर्नमेंट में आपने कोई सर्विस की है, टेम्पररी हो, ऑफिसिटिंग हो, सब्सटेंटिव हो, वो इंक्लूडेड है। लेकिन सर्विस रेंडर्ड इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आपने जो भी सर्विस की है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि बैंक में सर्विस की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में की, वो सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होगी। ऑटोनोमस बॉडी में की है, इंक्लूडेड है। सर्विस रेंडर टेम्पररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबर, अगर टेम्पररी लेबर ने की तरह आपने काम की है तो 50% ही काउंट होगी। रूल नंबर 15 ये कहता है, पूरी सर्विस काउंट नहीं होगी। 10 साल की तो 5 ही साल होगी। काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन फॉलोड बाय कन्फर्मेशन। आप कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, रिटायरमेंट के टाइम किसी ने नहीं पढ़ा है तो साहब 2 साल प्रोबेशन के किसी ने कम कर दिए, किसी को नहीं पता था, नया आदमी था तो वो कम कर। नहीं भाई, प्रोबेशन अगर कंफर्मेशन हो गया है तो वो भी इंक्लूड करनी है। ठीक है सर, सभी को मेरी बात है ना? हाँ, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है सर्विस एज अप्रेंटिस। अगर आपने अकाउंट सर्विस में अप्रेंटिस रहे हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो भी वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन सर्विस एज अप्रेंटिस सेल नॉट क्वालिफाइड, अगर वो बाद में क्या हुआ है दूसरी किसी जगह किया है तो ये 2 जगह ही अप्रेंटिस की सर्विस आपकी जो है ना वही काम आएगी, बाकी नहीं। ठीक है। काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन और बिफोर आपकी 1/4/2000, शायद ये डेट गलत लग गई है, 1/1/2004 होना चाहिए था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे थे आप तो वो भी काउंट नहीं होगी। 1/1/2004 पीरियड बिटवीन रेजिग्नेशन। अब यहाँ पे एक मजेदार क्वेश्चन और है सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, कैपिटल में लिखा है उसको। अब मान लो एक आदमी ने रेजिग्नेशन में, आपको यहाँ केस बताता हूं, एक आदमी ने रिजाइन कर दिया, ओके, और उसके बाद में उसने क्या किया, घर पे बैठ गया। 90 दिन तक का नोटिस देना होता है ना, 3 महीने का, और 2 महीने बाद उसने कहा कि भाई मुझे वापस आना, और रेजिग्नेशन वापस ले लिया। अब वो पीरियड क्या होगा बीच का? वो लीव की तरह माना जाएगा सर? वो लीव की तरह माना जाएगा। लीव दे दी है तो वेल एंड गुड, लीव नहीं है तो ईएल दो, ईएल नहीं है तो वो सर्विस का पार्ट नहीं मानेगा, फिर क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट नहीं मानेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, रूल नंबर 19 क्या कहता है? सर हाँ, एक मिनट, अगर वो रेगुलराइज करा ले इस पीरियड को तो लीव दे दी तो रेगुलराइज हो गया ना, हो गया, फिर तो माना जाएगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो मैडम, मान लो कोई पर्सन, और भी केसेज आएंगे आगे हम देखेंगे, वो रेजिग्नेशन दे गया है ना, और 90 दिन का पहले मान लो, उसमें नॉर्मली 3 महीने का टाइम इसीलिए रखा गया है। कुछ ऐसे केसेज है वो मान लो 6 महीने तक बैठा रहा, रेजिग्नेशन का केस नहीं बता रहा हूँ, और केसेज है जहाँ पे उसकी फिर सर्विस का क्या करे, तो वो रेगुलराइज नहीं है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, नौकरी रहेगी, उसकी पेंशन मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उतनी कम हो जाएगी उसकी। सर ये एग्जैक्टली 3 मंथ्स है कि 90 डेज है सर? 3 मंथ्स है, मैंने जो पढ़ा है 3 मंथ्स, अभी आएगा, इसमें लिखा हुआ है मेरे स्लाइड में। ठीक है, कल रेगुलराइज नहीं हुई तब तो क्या बोला आपने? उतनी सर्विस माइनस हो जाएगी आपकी पेंशन के लिए, पेंशन ग्रेचुइटी के लिए। ओके। ठीक है, वो केसेज है आगे। रूल नंबर 19 क्या कहता है? काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस इन द केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट 1
ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन कंपनसेशन पेंशन, ये वर्ड याद रख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज। कंपनसेशन पेंशन, अगर कोई कंपनसेशन पेंशन पे रिटायर हो गया और री एम्प्लॉयड हो गया, और इनवैलिड पेंशन। अब देखिए कितनी तरह की पेंशन है, ये एक पूरी मैंने पीडीएफ बना रखी है, आपसे शेयर करूंगा। और कंपनसेशन ग्रेचुइटी और इनवैलिड ग्रेचुइटी वाज री एम्प्लॉयड एंड अपॉइंटेड ऑन और बिफोर, अगर उसकी प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस है तो ये सारी इंक्लूडेड होगी। अगर री अपॉइंट हो गया है तो ये सब इंक्लूड होगी क्वालिफाइंग सर्विस में। ठीक है, अब आप देखिए क्वालिफाइंग सर्विस खुद अपने आप में मेरे पास जो पेपर है, दोबारा एक्सप्लेन करिए सर। हाँ सर, देखिए सर वापस लाइए पेज। देखिए रूल नंबर 19 क्या कहता है, काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस, रिटायरमेंट से पहले कोई सर्विस की है और वापस री एम्प्लॉयड हो गया गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, और ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन, या तो कोई क्या हुआ है कंपनसेशन पेंशन, अब ये क्या है, ये पूरी एक डेफिनेशन है कंपनसेशन पेंशन की, और इनवैलिड पेंशन, या उसको इनवैलिड पेंशन भी बोलते हैं, या कंपनसेशन ग्रेचुइटी और इनवैलिड ग्रेचुइटी पे रिटायर हुआ है, वाज री एम्प्लॉयड, और उसको वापस री एम्प्लॉयड कर दिया गया है, तो उसकी भी प्री रिटायरमेंट सर्विस जो थी वो काउंट हो जाएगी। एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लो एक आदमी डिसेबल हो गया 3 साल के लिए 4 साल के लिए, उसने कहा साहब मुझे रिटायरमेंट दे दो, है ना, और फिर वापस उसको दूसरी नौकरी मिल गई, है ना, तो वो सर्विस जो प्री रिटायरमेंट थी वो भी उसकी इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो उस समय रिटायर हुआ था इनवैलिड पेंशन पे, कंपनसेशन ग्रेचुइटी लेके, तो वो सर्विस भी इंक्लूड हो जाएगी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे केसेज हैं आगे दे रखे हैं मैंने इसी में। तो अब आप देखिए क्वालिफाइंग सर्विस जो पेंशन रूल है 2021, 2.5 पेज दे रखे हैं, कितने, और मुझे मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मैं 3-4 स्लाइड में उसको खत्म कर दूं, है ना, तो उसका कितना पोर्शन मैं यहाँ लिख सकता था, मैंने मिनिमम से मिनिमम लिखने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिए, काउंटिंग टू ड्रॉ मिलिट्री सर्विस और रिटेनिंग ग्रेचुइटी रिसीव्ड, अगर आपने ग्रेचुइटी रख ली है मिलिट्री सर्विस की तो आपकी काउंट नहीं होगी, और कोई न्यू पेंशन स्कीम में है तो नेशनल पेंशन सिस्टम न्यू पेंशन स्कीम में है तो उसकी भी सर्विस काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट नीचे कीजिए सर। अब यहाँ एक यूएल का केस आता है, अभी अपन बात कर रहे थे, रूल नंबर 21, ऑल पेड लीव, जितनी भी आपकी पेड लीव है, यूएल है ऑन मेडिकल, डिफॉल्ट यूएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट डीम्ड टू बी काउंटेड। अब ये एक केस अभी मैं डिस्कस करता हूं, पहले हम ये देख लेते हैं रूल नंबर 21 जो लिखा है, जितनी भी पेड लीव है और यूएल ऑन मेडिकल है, और उसके अलावा यूएल विदाउट मेडिकल है ड्यू टू सिविल कमोशन हाई। अब देखिए ये मैंने लिखा है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कोई भी यूएल ले लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिना मेडिकल के तो वो काउंट नहीं होती है, लेकिन आपकी मजबूरी थी, कहीं दंगा हो गया, सिविल कमोशन हो गया, हायर स्टडी के लिए गए, तो वो यूएल विदाउट मेडिकल भी काउंट होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का राइट है को उसको काउंट करे या नहीं करे, उसको लगेगा कि जेन्युइन रीजन है तो वो काउंट कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। इट इज नॉट योर राइट, ठीक है। अब मान लो मैं केस बताता हूं, एक आदमी ने 10 दिन की लीव ले ली यूएल, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं है, मैं 10 दिन यूएल पे चला गया, या 3 महीने की यूएल पे चला गया, मैं 3 महीने की बात करता हूं, क्या वो काउंट होगी रिटायरमेंट के टाइम? नहीं काउंट होगी सर, नहीं अगर काउंट मेडिकल होगी। पर है, ना मेडिकल पर है तो मेडिकल वाली तो बात क्लियर है, बिना मेडिकल के एक आदमी साल भर छुट्टी पे रह गया, यूएल ले ली, सारी छुट्टी सीएल ईएल एचपीएल खत्म हो गई, अब वो फिर भी जो है छुट्टी पे रहा, छुट्टी दी है उसको लेकिन मेडिकल नहीं है उसके पास, नहीं काउंट होगी सर, नहीं काउंट होगी सर। If he is able to prove that it is due to civil commotion, नहीं उसके अलावा वो केस तो कंसिडर अथॉरिटी को पावर है कि करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी 1 साल की यूएल पे चला गया बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, ना तो कोई दंगा हुआ है ना हायर स्टडी के लिए गया है, तो क्या करेगा, उसकी यूएल जब वो एप्लीकेशन देगा तो उसको सर्विस बुक में लिखना है 6 महीने के अंदर अंदर
कि भैया ये तुम्हारी लीव जो है सर्विस काउंट होगी क्वालिफाइंग सर्विस में या नहीं होगी। 6 महीने के बाद आप नहीं लिख सकते, अगर नहीं लिखा तो डीम टू बी काउंटेड। मतलब ही नीड टू बी नहीं, इंटीमेटेड। हाँ, ही नीड टू बी इंटीमेटेड। 6 महीने के अंदर अंदर आपने की एप्लीकेशन देने के 6 महीने के अंदर अंदर काउंट करने की नहीं करनी, आपको लेटर देना पड़ेगा। रिटायरमेंट के टाइम बोलोगे साहब नहीं अब काउंट होगी, तो भैया आप इट इज माई राइट, यू हैव टू काउंट, इट इज डीम्ड टू बी काउंटेड। आपने मुझे लेटर क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो भाई आप सभी प्रिंसिपल बनने वाले ध्यान रखिएगा। किसी का नुकसान नहीं करें, ये रूल जान के किसी का फायदा ही करें। जी जी नहीं सर, एक मिनट सर, दोबारा समझिए, लेटर कौन देगा? एम्प्लॉय देगा? लीव किसने सैंक्शन की है? अरे सर्विस बुक में इसकी एंट्री होगी, लिखना हाँ, पड़ेगा। वो जो लीव की एंट्री है वो सर्विस बुक में आप करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की। तो वो लीव जो है कि एंट्री करते वक्त ये ध्यान रखना है कि भैया ये क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट होगी कि नहीं होगी। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल को यानी जो भी अथॉरिटी को उसको लिखना पड़ेगा कि 6 महीने की जो है ना, 6 महीने के अंदर अंदर में। ओके, हाँ ठीक है ना, ठीक सर, थैंक यू। ओके। और एक्जोनेट, अगर एक मिनट सर, ऊपर की एक रह गया है शायद, एक पॉइंट रह गया है। अगर कोई आदमी सस्पेंड हो गया और उसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगा दी, तो वो जो पीरियड है सस्पेंशन वाला वो भी जो है क्वालिफाइंग सर्विस में, अभी हमने देखा रूल 16 में जो भी पेनल्टी अगर इम्पोज हुई है तो वो पीरियड का सस्पेंशन का भी काउंट होगा। लेकिन फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिसल रिमूव, अगर उसको माइनर मेजर पेनल्टी दे दी, रिजाइन कर दिया, तो फिर वो सर्विस काउंट नहीं होगी सब। और उसके बाद अपील में अगर रिव्यू हो गई, अपील में रीइंस्टेट हो गया, तो वो काउंट हो जाएगा। ये 3 अलग अलग बातें हैं। मंगीलाल सर, हाँ सर, प्लीज ना इसको एक बार फिर से समझाएं कि ये प्रिंसिपल। मैं फिर से बता देता हूँ। प्रिंसिपल एक आदमी एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। प्रिंसिपल को 6 महीने के अंदर एम्प्लॉय को बताना है या सिर्फ सर्विस बुक में लिखना है कि ये काउंट होगी? सर्विस बुक में एम्प्लॉय लिखना है, लिखेगा, साथ में एम्प्लॉय को बताए। उसको अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो वो देगा उसके अगेंस्ट में। अच्छा, एम्प्लॉय देगा? एम्प्लॉय को अगर आपने कहा कि क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं करूंगा मैं, और उसके पास मान लो कोई वैलिड रीजन था जो कि उस समय उसको नहीं पता था, उसने नहीं दिया, आपने एंट्री कर दी, उसको बताया ही नहीं। नहीं भाई, उसको बताना कि आप उसकी लीव सैंक्शन जब करते हो तो अब उसी समय लिख देना है। बाद में ही तो दी होगी उसने लीव की एप्लीकेशन नॉर्मली की। हाँ। दूसरी बात जो है, एक और बता देता हूं, अगर कोई आदमी सस्पेंड है, बोलिए सर। ये 6 मंथ वाला जो क्लॉज है, एक बार जरा से इसको आप देखिएगा, रिव्यू करिएगा। वो रिटायरमेंट के 6 महीना पहले एंट्री करना है, कुछ ऐसा है? नहीं 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 नहीं, लीव की एंट्री कब करता है? आपने 1999 में लीव ली, एंट्री कब जो है 2026 में करेंगे रिटायरमेंट के टाइम? नहीं सर, सेम मंथ में होती है, सेम टाइम में। एटलीस्ट कम से कम आपको साल भर सर्विस बुक दिखाई जाती है, उस समय आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। रूल है ना, एवरी जनवरी 30। वैसे भी लीव की काउंटिंग तो मतलब रिकॉर्डिंग तो हर 6 महीने में होती है ना सर। लेकिन सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की बात, ये तो कहीं लीव रजिस्टर में तो चढ़ती नहीं है। जी 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 बिल्कुल, मैं क्लियर हूं। एक केस रह गया सर, पुराना, टाइम ज्यादा हो रहा है, आज क्वालिफाइंग सर्विस तक ही एक ऊपर का केस रह गया सर। एक किसी ने सस्पेंशन वाला पूछा था। देखिए 3 अलग अलग बातें हैं। एक आदमी सस्पेंड हो गया, ठीक है, और उसको माइनर पेनल्टी मिल गई, तो जो सस्पेंशन का पीरियड है वो क्या होगा? वो ड्यूटी में गिना, क्वालिफाइंग सर्विस में गिना जाएगा। लेकिन एक आदमी सस्पेंड है और उसको नौकरी से निकाल दिया, या उसने रिजाइन कर दिया है, या जो है उसको डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो वो सस्पेंशन का पीरियड, जितने दिन तक सस्पेंड रहा और इंक्वायरी चली, वो पीरियड जो है काउंट नहीं होगा उसकी क्वालिफाइंग सर्विस में, मेजर पेनल्टी और एज ए पेनल्टी। लेकिन अगर वो अपील में चला गया और अपील में उसको रीइंस्टेट कर दिया, तो वो सस्पेंशन पीरियड काउंट हो जाएगा। हो जाएगा। मैं क्लियर हूं अपनी बात में।
एकदम सही। सर सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वाला जरा मैं बताना चाहूंगा। मैंने अभी रीड किया, उसमें ऐसा नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर विदाउट मेडिकल ली जाती है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगी। एक मिनट सर, क्लॉज नंबर कितना है सर? सर मैं पूरी बात कर लूँ सर, मैं पूरी बात कर लूँ सर पहले, मैं मेरी बात खत्म हो जाएगा। उसमें ये लिखा है कि आपको लीव लेते ही उसे सर्विस बुक में एंटर करनी है और वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगी। उसे लेटर में भी एंटर किया जा सकता है, लेकिन रिटायरमेंट से 6 महीने पहले उसे उसके बाद उसे एंटर नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई रिटायरमेंट होने वाला है तो 6 महीने से पहले पहले उसे एंटर कर दीजिए। अगर आप उसके बाद उसे एंटर करते हैं सर्विस बुक में। हाँ जी सर, एक मिनट मैं देख लेता हूँ सर। क्लॉज नंबर आपको याद है? 21 था ना? पेज नंबर 21 सर। रिलेटेड एक मैं भी क्लियर हो जाऊंगा। मैंने इनबॉक्स में सर उसको कॉपी किया है, एक बार देखिए ना उसका लैंग्वेज। वो यही कह रहे हैं सर, वो रिटायरमेंट से 6 महीने पहले एंटर करना कंपल्सरी है, उसके बाद करेंगे मतलब तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले एंट्री करना है उसका। अच्छा ऐसा है, एक मिनट में एक केस आता है जहाँ पे सर्विस ब्रेक होती है। ये शायद वही वाला पॉइंट है जहाँ पे सर्विस ब्रेक होता है। एक बार हम इसको लेने के बाद सर्विस ब्रेक होती है। मैम सर्विस ब्रेक बहुत बड़ा पॉइंट है। सर्विस ऐसे ब्रेक नहीं होती है। सर्विस ब्रेक कैसे ब्रेक होती है? ऐसे नहीं होती है। सर्विस ब्रेक से पहले वाले साल काउंट ही नहीं होते हैं, वो अलग चीज है। वो अलग सर्विस ब्रेक अलग चीज होती है। डाइज नॉन होती है सर्विस ब्रेक नहीं। Yes, everyone, please. Yes, Vikas ji, please mute yourself. Thank you, Vikas ji, and Madam Preeti also enlightened it. Now, Mangilal ji will explain it in tomorrow's class. Clause number 21, we are going to repeat it. Yes. Everybody can Okay. मैं भी एक बार देख लूंगा, कोई बात नहीं। अगर मैंने लिखने में कोई जी। Everybody will take it as a homework. आज जाके आप क्लॉज 21 को पढ़ेंगे। इस पर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। मांगीलाल जी 2-3 केस देंगे और विकास जी भी एक प्रश्न बना के लाएंगे और प्रीति मैडम भी एक प्रश्न बना के लाएंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। मांगीलाल जी, क्या हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे? एक क्वालिफाइंग सर्विस अगर सर खत्म हो जाए तो फिर क्या 1 या 2 बच्चे होंगे मेरे ख्याल से, अगर सबको बोरियत नहीं हो रही है तो। नहीं, बोरियत बिल्कुल नहीं हो रही है सर। बस ये एक आखिरी स्लाइड बची है क्वालिफाइंग सर्विस की, उसको खत्म कर लेते हैं। जी बस हाँ यही। जी। रूल नंबर 26 का 7 क्लॉज क्या कहता है? When an order is passed by the appointing authority allowing the person to withdraw his resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service, but period of interruption shall not count as qualifying service. When the order passed by the appointing authority allowing the, एक आदमी ने रेजिग्नेशन दिया और उसने थोड़े दिन बाद वापस ले लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। एक आदमी ने रेजिग्नेशन दिया, नोटिस दिया 90 डेज का, 3 मंथ्स का, सॉरी, है ना। 3 मंथ के बाद उसको जो है मन किया उसका मेरे को रेजिग्नेशन वापस लेना है। कब वो कितने दिन पहले एप्लीकेशन दे सकता है? वापस लेने कितने दिन पहले मन किया? कल मेरी लास्ट डेट है नोटिस की, आज मेरा मन हुआ रिटायरमेंट का नोटिस वापस ले लूं, कितने दिन पहले है? 15 डेज। और कोई? तो अथॉरिटी देगी उस तक ना पहुंच जाए, ऐसे कुछ। और कोई? 1 मंथ। और कोई? लास्ट डे तक वो कह सकता है। और कोई? 15 डेज आंसर आ रहा है मेरे पास। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, जब तक एक्सेप्ट नहीं। और कोई? सॉरी फ्रेंड, 15 डेज करेक्ट है। मैं जानबूझ के देख रहा था कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना है। 15 डेज इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसको जो है ड्यूटी ऑर्डर सेल बी डीम टू इंक्लूड, उस ऑर्डर में ये इंक्लूड होना चाहिए। देखो सेल वर्ड लिखा है कि कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस बट द पीरियड ऑफ इंटरप्शन सेल नॉट काउंट। वो जो बीच का पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होना होगा, या जो डीम टू बी इंक्लूड होना चाहिए, उसमें ये लिखा होना चाहिए। जो वापस लेने का ऑर्डर है कि यस आपका रेजिग्नेशन वापस लेने के लिए परमिट किया जाता है।
तो बीच का जो पीरियड है 20 दिन 15 दिन जो भी है ना। और 8th क्लॉज कहता है रेजिग्नेशन सबमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ रूल 35 और रूल 36 सेल नॉट एंटेल द फोर फीचर ऑफ। अब ये 35 और 36 क्या है? टेक्निकल रेजिग्नेशन, ठीक है। उसमें अगर रेजिग्नेशन दिया है तो उसके ऊपर ये क्लॉज लागू नहीं होगा, ठीक है। कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपने एब्जॉर्ब होने के लिए गए हैं, ठीक है, तो पास्ट सर्विस आपकी फॉरफिट नहीं होगी। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, अगला शायद ये आखिरी होगा मेरे ख्याल से, एक बार देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। ठीक है, अब ये एक और है, अगर मान लो सस्पेंड, अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया, सस्पेंड हुआ है, रिमूव हुआ है, कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया है और उसके बाद में वो रीइंस्टेट हो गया, तो बीच का पीरियड क्या होगा? इट शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग, नॉट काउंट इफ एनी, नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस अनलेस रेगुलराइज एज ए ड्यूटी और लीव बाय स्पेसिफिक। या तो बीच के पीरियड को लीव दे दो, अगर लीव नहीं है तो यूएल दे दो, और उस ऑर्डर में लिखा रहना चाहिए कि भाई बीच के पीरियड को ड्यूटी मानेंगे या नहीं मानेंगे। और आपका रेजिग्नेशन जो है अगर प्रॉपर परमिशन से टेक्निकल रेजिग्नेशन पे गए हैं तो फिर वो काउंटिंग होगी क्वालिफाइंग सर्विस में, ठीक है। और अगर आपका रेजिग्नेशन दिया और वापस ले रहे तो उस ऑर्डर में ये लिखा होना चाहिए को इंटरप्टेड पीरियड जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस में होगा या नहीं होगा। अब इंटरप्शन बिटवीन टू सर्विस क्या है? मान लो एक चीज और यहाँ पे आखिरी ये बस पॉइंट करके हम क्लास खत्म करेंगे। एक आदमी ने, अब मैं आपको एक चीज और देता हूं, अगर एक आदमी ने मान लो स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई किया और उसका टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया कि भैया जाओ ज्वाइन करो, 5 तारीख को उसको ऑर्डर दिया कि ज्वाइन करो, वो 3 महीने घर बैठा रहा और अगले 3 महीने बाद वहां जाके ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा है, तो वो बीच का पीरियड क्या होगा? क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। कितना पीरियड तक उसको ज्वाइन करना है? 15 दिन के अंदर? नहीं जी। और कोई? और कब उसको पता लगेगा कि उस आदमी ने ज्वाइन कर लिया है? उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कब तक काउंट होगी? ये एक क्वेश्चन है, उसके साथ हम खत्म करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। एक आदमी 1 जनवरी को उसने टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया, ज्वाइन करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, उसको कब तक ज्वाइन करना है वहां? 6 मंथ तक। 6 मंथ में ज्वाइन करना है, तो 6 मंथ का क्या होगा? उसकी सर्विस कंटिन्यू मानी जाएगी? नहीं जी, वो घर पे बैठा है 6 महीने से, 6 महीने से नहीं, उसको अगर मतलब डिपेंड करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट में गया है, कहाँ गया, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा उतना जो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम है। सेम स्टेशन पे है या अलग, वो सब आपको पता है ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलता है। ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, अगर ज्वाइनिंग टाइम से ज्यादा हो गया तो इंटरप्टेड पीरियड को लीव माना जाएगा, या फिर वहां जाने के बाद वो इंटीमेशन देगा। अगर मान लो आज आपने ज्वाइन किया और 4 दिन का सपोज ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, 1 तारीख को आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, अब आप 5 तारीख को ज्वाइन करते हैं, तो कब आपकी सर्विस कब तक काउंट होगी? 1/1/26 को आपने जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया, 5 तारीख को ज्वाइन कर लिया, तो पुराने डिपार्टमेंट में कहां तक क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगी और नई सर्विस वहां काउंट होगी? फिर वो कैरी फॉरवर्ड सब 1 तारीख से ही काउंट होगी। और कोई? सॉरी सर, रॉन्ग आंसर। क्योंकि उससे 4 दिन का ज्वाइनिंग टाइम ऐड होगा। ज्वाइनिंग टाइम का क्या करे वो? उसकी सर्विस कब तक काउंट होगी क्वालिफाइंग सर्विस? 4 तक। उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के 1 दिन पहले तक, 4 तारीख तक। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, वहां से कुछ कहना था। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो मुझे मतलब कि जो ऑर्डर मिला था दैट मतलब कि हमारा को यहाँ से रिलीव किया जाता है। ये डिस्कस मैडम
आपका केस अगर डिटेल्ड है तो सब लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इससे रिलेटेड है सर। जैसे 29 को हमको रिलीविंग मिल गया है, मतलब कि यहाँ से आई एम रिलीव फ्रॉम सर्विस, है ना, और 30 को मैंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि मुझे टाइम मिला था यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए अप टू 31st, वहां से उन लोगों ने दिया था कि मतलब कि आपका सर्विस कंटिन्यू करता है 31st तक इन दिसंबर, है ना। और हमने 29 को रिलीविंग लेके 30 को ज्वाइन कर लिया। तो वो हाँ, तो बीच में 2 दिन हो गया ना, 30-31, तो उसमें वहां भी हमारा जॉब शो हो रहा है और यहाँ भी हमने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा नहीं होगा ना। मतलब कि टेक्निकली आपने ज्वाइन किया उससे एक दिन पहले तक पुराने डिपार्टमेंट में क्वालिफाइंग सर्विस को काउंट कर लेगा। आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। हाँ, कर लिया था सर। आपने इंटीमेशन दिया प्रीवियस वाले गवर्नमेंट में? हाँ, या दिया था, शायद दिया था तो कर लिया होगा। नहीं है तो आपको 30 डेज में रिप्रेजेंट करना था। नहीं, ऐसा सच वहां से कुछ आया नहीं। जैसे नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है 1-2 दिन के लिए। देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, मैं तो लिखे हुए की बात कर रहा हूँ। इन केस एनी डिस्प्यूट अराइजेस देन ऑल सच थिंग्स हैपेंस। नहीं तो 1-2 दिन में नॉर्मली क्या है कि अगर हो भी तो यूएल देके लीव लेके छुट्टी करते हैं, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर लेते हैं। नहीं, लीव तो नहीं दिया था सर, लीव नहीं दिया था। बस तो कुछ नहीं, वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है सर, ओके, है ना। तो साथियों, आप सब ने मुझे ध्यान से सुना और इतना जो है पेशेंस के साथ सुना, आप सबका धन्यवाद। नो डाउट मेरी क्लास उतनी इंटरेक्टिव नहीं रही होगी क्योंकि ये टॉपिक सारे ऐसे ही हैं जिसमें आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है। एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश। नहीं सर, ये गलत बोला सर आपने, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। सर बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छे से समझाया आपने। धन्यवाद आप सभी। और ये सर साइलेंस की वजह थी ना कि टॉपिक बहुत सीरियस था, तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, शायद इसलिए भी साइलेंस बना था सर। देखिए, ये पेंशन पेज में मेरे पास जो बुकलेट मैंने प्रिंट करवाई थी, नए पेंशन रूल 111 पेज है, ठीक है। और उसमें से 60 पेज को मैंने कोशिश किया कि समराइज ज्यादा से ज्यादा 8-10 पेज में कर लूं, लेकिन कुछ चीजें मैं नहीं चाहता कि छूट जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसको पता नहीं हो। सारे क्लॉज इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले। 1.5 घंटा हो गया है, आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मंगीलाल सर, यस मंगीलाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो शब्द अपने लिए प्रयोग किए वो हमें अच्छे नहीं लगे क्योंकि हमारे पूरे साथी जुड़े हुए थे। नहीं, वो ठीक है सर। मुझे मेरी जो है थोड़ी कुछ जगह पे इंग्लिश का पावर थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा मैं अपना नॉलेज के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होता सर। कहीं भी नहीं लगा ऐसा कि आपकी इंग्लिश कमजोर है। हमें कहीं भी महसूस नहीं हुआ सर। आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी। It was a wonderful session, and friends, you will be getting this PDF along with the PDF of Mangilal ji. वो जो सर का PDF है वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। एंड दिस उसको कंटेंट के रूप में हमने इस तरीके से बना लिया है। सर के चीज़ों को इस तरीके से इन ब्रीफ करने का प्रयास है और ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से Day 2 रहेगा क्वालिफाइंग सर्विस का, ये वाला पार्ट पे हम रहेंगे। कल भी हम देवांग सर कंटिन्यू करना चाहेंगे। देवांग सर, मेरा एक रिक्वेस्ट था, इस ग्रुप में एक दिन एक पेज आया था जिस पर महत्वपूर्ण जो है दिनांक लिखे हुए थे कि किस दिन से कौन सा रूल लागू हुआ है। उसमें सर एक बार प्लीज उसे भेज दीजिए, बहुत बढ़िया था। मैं प्रिंट आउट निकालूंगी। आपका बड़ा शुक्रिया। मैं उसको करेक्ट करके, पोक्सो की डेट गलत लिखी थी, मैं उसको करेक्ट करके इनेक्टमेंट डेट लिख दी थी एनफोर्समेंट की जगह। मैं दोबारा सर उसको प्लीज भेज दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा पेज था वो। 5 मिनट बाद आपको मिल जाएगा ग्रुप में। हाँ, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप बने रहिए। मैं समझता हूँ कि दिस इज सच अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल ऑफ अस आर सिटिंग टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर। मैं 2 मिनट का और समय लेना चाहूंगा, आप लोग रुके रहे क्योंकि आई वांट टू रिकॉर्ड इट, आई वांट टू शो इट, क्योंकि कई इस तरीके की क्वेरी आ रही कि सर हमें PDF नहीं मिल पा रहा है। मंगला जी 2 मिनट लूंगा मैं केवल।
तो दोस्तों जब आपको जो कोई लिंक मिलती है और आप उस लिंक पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से, जैसे आपको व्हाट्सएप में लिंक मिलती है, कई लोग मुझे कहते हैं जैसे कि हम अपने ही किसी ग्रुप में जाएं और देखें, व्हाट्सएप खोल लेता हूं मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से सपोज ये कोई लिंक है हमारे किसी भी प्रकार की लिंक है, आपने ये सिंपली क्लिक किया, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इट इज ऑल ऑनलाइन, यू कैन सी इट। और जब वो साइट ओपन होती है, हाउ टू गेट द PDF, दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, वो मैं 2 मिनट में आपको बता दूं। ये आपका वीडियो चालू हो गया, आप देखिए इधर, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आप मेरे कर्सर पे ध्यान रखिए, कर्सर दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और इसमें एक वर्ड है मोर, आपको दिख रहा होगा ये मोर, इस मोर पे आप क्लिक कर दीजिए और सबसे नीचे आप आ जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, देखिए दोस्तों, आप जूम करके देख लीजिए, इम्पोर्टेंट लिंक PDF एक्सप्लेनेशन एंड MCQ, ये ड्राइव लिंक है, आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये PDF आपको मिल जाता है। एंड नाउ यू कैन डाउनलोड इट एट योर कन्वीनियंस। यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। दोस्तों ये थी हमारी क्लास आज की, कल फिर से आपसे मिलते हैं, कल पेंशन की ही क्लास रहेगी और मांगीलाल जी इसको कंटिन्यू करेंगे, एंड देन ऑन 6th we will again continue with the pedagogical class. Thank you very much Mangilal sir, thank you all of you. Thank you sir, thank you. See you all tomorrow for the class. थैंक यू सर। आप सभी का भी धन्यवाद। सर